Bismillahirrahmanirrahim. So today the topic of our discussion is new product development and product lifecycle strategies. So the objectives of this chapter would be understand how companies find and develop new product ideas, to learn the steps in the new product development process, and to know the stages of the product life cycle, and to understand how marketing strategies change during the product's life cycle. So first of all, we will learn that what is actually a new product. It's our common thinking that a new product means when the company come up with something very innovative and creative or entirely new kind of product, but it's not like that. A new product can be um, an improvement in your original product, a development, a modification of your original product, or it can be a new product through your research and development department of your company, as the research and development department continuously work for the development in your products, and the changes and wants improvements, and often come up with something entirely new. So a new product can be an entirely new product, or it can be certain modifications and improvements in your existing product. It's also called a new product. So, what would be the strategy for the new product development? Now we will discuss the strategy for new product development. As I have told you that new products can be obtained via acquisition of two brands, like when Zong acquired Parktel, so it was an acquisition of two companies, and the resulting product was a new product. So new product we can obtain via acquisition, or a new product development in the company's own research and development department. Acquisition से भी हम लोग new product acquire कर सकते हैं, और अपनी company का जो research and development department है वो भी हमें एक new product idea को generate करके दे सकता है, entirely new product. यहाँ पे certain modifications भी हो सकती हैं हमारी existing product में. So new products suffer from high failure rates. Why? The reasons are market size आपने properly उसको mark out नहीं किया, positioning आपने अपनी product की proper positioning नहीं की, pricing are overpriced, और competition excess competition है market में, और जब आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो साथ में कॉम्पिटिटर भी न्यू प्रोडक्ट के साथ आ जाता है. सो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है आपकी प्रोडक्ट का, या आपने प्रॉपर एडवर्टाइजिंग कैंपेन नहीं लॉन्च की. सो दीज आर द रीजंस फॉर न्यू प्रोडक्ट फेलियर रेट्स. And the new product development process has different stages. There are 8 stages: new idea generation, then idea screening, then concept development and testing, then marketing strategy development, then business analysis, product development, test marketing, and commercialization. Now we will discuss all of them. So number first is uh, idea generation process. So what is idea generation? Idea generation idea generation is a systematic search for new product ideas through the idea sources. Can be internal idea sources, like your research and development process come up with some new ideas that as they continuously do research and development, so they come up with the research results that the customers needs are changing. So these improvements and modifications could be done in your products, or the idea sources can be your external idea sources, like your customers. Through feedback they
कम अप विद सर्टेन आइडियाज़, वो आपको कस्टमर्स भी बता सकते हैं थ्रू फीडबैक कि हमारी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारी हमें ये फीचर्स चाहिए या ये चेंजेस आपकी करंट प्रोडक्ट में हमें ये चेंजेस चाहिए। थ्रू देयर फीडबैक देन आपके कंपेटिटर से आपको पता चलता है कि मार्केट में क्या इनोवेशंस और न्यू डेवलपमेंट्स आ रही हैं। सो कंपेटिटर्स के अकॉर्डिंगली भी आपको देन अपनी स्ट्रेटजीज, डिफेंसिव स्ट्रेटजीज आपको एक्वायर करनी है, क्रिएट करनी है। कंपेटिटर के अकॉर्डिंगली आपने प्रोडक्ट्स में सर्टेन फीचर्स और चेंजेस लानी है। देन आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स और आपके जो सप्लायर्स हैं वो आपको बताते हैं कि मार्केट में ये डिमांड है या ये रॉ मटेरियल है, इसके थ्रू हम लोग न्यू आइडिया क्रिएट कर सकते हैं। आपके सप्लायर्स आपको बताते हैं। सो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के जो आइडियाज हैं दैट कैन बी internal idea sources and they could be external idea sources. Then number second stage in new product development process is idea screening. The purpose of idea generation stage is to create large number of ideas, pool of ideas हम लोग generate कर देते हैं. Then the purpose of the succeeding, the further stages are to reduce the number of the ideas as all the ideas are not feasible. So first idea reducing stage is idea screening. Screening new product ideas in order to spot good ideas and drop poor ones as soon as possible. Why? Because the product development cost increases in later stages. So we have to select only that idea which is feasible and which whose implementation is possible. So हम लोग पूल ऑफ आइडियाज में से आइडिया स्क्रीनिंग करते हैं, एक आइडिया को हम लोग सेलेक्ट कर देते हैं, बाकी जो पुअर आइडियाज हैं उनको हम ड्रॉप आउट कर देते हैं. आइडियाज आर इवेल्युएटेड अगेंस्ट क्राइटेरिया, मोस्ट आर एलिमिनेटेड विच डू नॉट फिट इन द कंपनीज क्राइटेरिया. सो हम लोग आइडिया स्क्रीनिंग से हम लोग को एक आइडिया सेलेक्ट कर लेते हैं, स्क्रीन आउट कर लेते हैं. Then number third stage is concept development and testing. So in concept development, it's a detailed version of new product idea stated in meaningful consumer terms. For example, concept है antibacterial toothbrush disinfectant. It's a concept development means आप new product idea को consumer की terms में, कि consumer को समझ आ जाए उन terms में आप उनको स्टेट कर लेते हैं. और concept, another concept is tension headache cooling pads for reducing headache. Then in concept testing, testing new product concept with a group of target consumers to find out if the concepts have strong consumers appeal or not. कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में आपने कॉन्सेप्ट को डेवलप कर लिया, देन कॉन्सेप्ट टेस्टिंग में आप कोई स्मॉल नंबर ऑफ टारगेट कंज्यूमर्स को आप लोग ले लेते हो और उसको आप लोग अपना कॉन्सेप्ट जो है वो स्टेट कर देते हो. वर्बली भी कर सकते हो, ग्राफिक्स और पिक्चर्स की फॉर्म में भी आप कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई टाइल्स की कंपनी है या किचन कैबिनेट्स को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो वो गॉगल्स और उस तरह की वो एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे और आपको कोई वीडियो या मूवी के थ्रू वो आपको उस वो दिखा सकते हैं स्लाइड्स के थ्रू. ये जैसे आजकल है मोशन राइड वगैरह हैं जो आपको आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में लेके चले जाते हैं, लेकिन आपको ऐसे फील हो रहा होता है कि आप उसी इन्वायरमेंट में हैं. सो कॉन्सेप्ट टेस्टिंग में वो टारगेट कस्टमर्स को अपने कॉन्सेप्ट को टेस्ट करवा लेते हैं पिक्चर्स के थ्रू, ग्राफ्स के थ्रू, वर्बली या फिर 3D के थ्रू भी आपको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं. सो इससे आपको पता चलता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं. सो व्हेन यू इंट्रोड्यूस एंटीबैक्टीरियल टूथब्रश डिसइंफेक्टेंट, सो सर्टेन कस्टमर्स आपको कहेंगे कि इट्स ओवर प्राइस, बहुत एक्सपेंसिव है. कुछ कहेंगे कि वी डोंट even need an antibacterial toothbrush disinfectant and we don't have any problem with infected toothbrushes. हमने तो toothbrush teeth ही clean करने हैं, तो we don't even need antibacterial toothbrush disinfectants or we don't need tension headache cooling pads. So concept testing से आप
जो है अपने कॉन्सेप्ट्स को फाइनलाइज करते हैं. So, in concept testing, customers are then asked to react to it by answering the questions like, do you understand the concept? What improvements you suggest? What would be a reasonable price? And would you buy it? If you buy it, definitely, probably, probably not, or definitely not. And what would be the reasons of not buying, and what would be the reasons of buying the product? Then number fourth stage is marketing strategy development. It means designing an initial marketing strategy for new products based on the product concept. Then the marketing strategy statement consists of three parts. First part describes its a target market, that what would be our target market, and how we will position our product, and what would be our sales, what would be our market share and profit goals for the first few years. Then the second part of the marketing strategy statement describes what would be the price. अगर price हमारी 200 है, so what would be our profit, कितने % profit हमने लेना है. So cost हमारी अगर 200 है, so उसमें हमें 20% अगर हम profit अपना डाल देते हैं, so price हमारी कितनी होगी. Then what would be our distribution channel and marketing budget for the first year. Then the third part describes the long-term sales, profit goals, and marketing mix strategy. Marketing mix matlab our 4 P's, our product, our pricing, our placing, and our promotion for long-term sales. Then fifth is our business analysis. Business analysis involves a review of the sales, costs, and profit projections for a new product to find out whether they satisfy the company's objectives or not. And what are the company's objective? Obviously, a company is doing the business for their profit. So if they do not, if the product, if they do, then the product can move to the product development stage. क्या हमें जो हम न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं उससे हमें कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, मींस जो कंपनी का डिजायर्ड प्रॉफिट है वो जनरेट हो रहा है. इफ यस, देन हम नेक्स्ट स्टेज की तरफ जाएंगे. एस्टिमेट सेल्स, और हमें अपनी ये जो प्रॉफिट प्रोजेक्शंस हैं, कॉस्ट प्रोजेक्शंस, ये कैसे करेंगे. टू एस्टिमेट सेल्स, द कंपनी माइट लुक एट द सेल्स हिस्ट्री ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स. जो मार्केट में सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं उसकी सेल्स हिस्ट्री हम लोग ले लेंगे, सर्विस कंडक्ट करेंगे, एंड एस्टिमेट द एक्सपेक्टेड कॉस्ट, लाइक रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट हमारी क्या होंगी, हमारी ऑपरेशंस कॉस्ट क्या होंगी, हमारी फाइनेंस कॉस्ट क्या होंगी, इसको हम लोग एक्सपेक्ट कर लेंगे. Company uses sales and cost figures to analyze new products' financial attractiveness, and on the basis of then these expected sales and cost figures, we will be analyzing our new product's financial attractiveness. Then sixth step is project development stage. It means developing the product concept into a physical product in order to ensure that the product idea can be turned into a workable product or not. So इस स्टेज में हम क्या करते हैं, एक प्रोटोटाइप बना लेते हैं. प्रोटोटाइप बना के उसको हम लोग टेस्ट कर लेते हैं. प्रोटोटाइप क्या है, एक सैंपल प्रोडक्ट बना लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, प्रॉक्टर एंड गैम्बल अपनी जो क्रीम्स हैं, टूथपेस्ट हैं, शैम्पूज हैं, उसके वो लोग एक पहले प्रोटोटाइप बना लेते हैं, एक सैंपल बना लेते हैं, उसको देन टेस्ट करते हैं वॉलंटियर्स पे. ठीक है, उनको अपना क्रीम्स देते हैं, और जो कि होता है कि इट्स नॉट फॉर सेल, इट्स फॉर सैंपल पर्पस. टूथपेस्ट, क्रीम्स है, शैम्पूज हैं, अपने वॉलंटियर्स को दे देते हैं. देन उससे आफ्टर यूज उनसे फीडबैक लेते हैं कि आपने व्हाट वर योर एक्सपीरियंस अबाउट इट. देन जिलेट की एग्जांपल है, रेजर्स को अपने वॉलंटियर्स को और स्टाफ को वो लोग चेक करवाते हैं ताकि हमें उनकी ब्लेड्स का शार्पनेस का पता चले, उसकी स्मूथनेस का पता चले ब्लेड्स की. सो एक प्रोटोटाइप बना के उनको देन वो टारगेट मार्केट पे टेस्ट कर लेते हैं. दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट. देन टेस्ट मार्केटिंग. प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आप एक प्रोटोटाइप बना के उसको टेस्ट करते हैं. टेस्ट मार्केटिंग पे आप इन दिस स्टेज product and marketing programs are tested in more realistic market settings.
ठीक है। रियलिस्टिक मार्केट सेटिंग्स में आप टेस्ट मार्केटिंग करते हैं, इसकी फिर 3 अप्रोचेस है। स्टैंडर्ड टेस्ट मार्केट्स है, कंट्रोल टेस्ट मार्केट्स है एंड सिमुलेटेड टेस्ट मार्केट्स है। स्टैंडर्ड टेस्ट मार्केट्स में आप क्या करते हैं, कंपनी जो है कुछ रिप्रेजेंटेटिव सिटीज को ले लेती है, 1-2 रिप्रेजेंटेटिव सिटीज, और उसमें एक फुल फ्लेज मार्केटिंग कैंपेन को लॉन्च करते हैं। देन स्टोर ऑडिट करते हैं, कंज्यूमर एंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्विस करते हैं और अपनी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को चेकआउट करते हैं। Then the results are used to forecast national sales and profits, discover potential product problems. रिप्रेजेंटेटिव सिटीज आप लोग ले लेते हैं, उसमें फुल फ्लैज मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च करते हैं, प्रोडक्ट को लॉन्च कर देते हैं डिफरेंट स्टोर्स में। देन आप स्टोर्स को ऑडिट करते हैं, कंज्यूमर से फीडबैक लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से फीडबैक लेते हैं कि प्रोडक्ट की सेल्स क्या है, कंज्यूमर्स लाइक कर रहे हैं, नहीं लाइक कर रहे हैं, क्या फीडबैक है। सो द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस टेस्ट मार्केट इज दैट इट्स वेरी कॉस्टली। ऑब्वियसली आप फुल फ्लैज एक मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च कर रहे हो फुल सिटी में डिफरेंट स्टोर्स में, सो इट्स कॉस्टली and it's also time consuming, like 3 to 5 years it would take to come up with the results. And test markets इसके जो इसके थ्रू टेस्ट मार्केट, स्टैंडर्ड टेस्ट मार्केट के थ्रू आपके जो कंपैटिटर हैं उसको भी आपके प्रोडक्ट का आइडिया हो जाता है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च की हुई है इन्होंने एज अ सैंपल, सो वो भी आपकी प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे और इट इज पॉसिबल कि वो उसको कॉपी करके बिफोर आपसे भी पहले वो लोग जो है उसको नेशनली लॉन्च कर दें। सो इट्स अ रिस्क इन स्टैंडर्ड टेस्ट मार्केट्स। देन कंट्रोल टेस्ट मार्केट्स, इसमें रिसर्च फर्म्स जो है कंट्रोल पैनल्स ऑफ स्टोर्स ले लेते हैं और उनको आप एक फी पे करते हो कंट्रोल पैनल ऑफ स्टोर्स को कि ये आप लोग हमसे फी चार्ज करें और हमारी जो प्रोडक्ट है वो आपने अपने स्टोर्स में रखनी है और हमें कस्टमर्स का फीडबैक आपने देना है कि कस्टमर्स का फीडबैक क्या आ रहा है। Then in simulated test markets, companies क्या करते हैं? Companies can also test new markets in a simulated shopping environment. The company or research firm show ads and promotions for a variety of products, including the new product being tested to a sample of consumers. आप जो सैंपल ऑफ कंज्यूमर्स हैं उनको आप डिफरेंट एड्स और प्रमोशन कंपेन्स दिखाते हो, अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, डिफरेंट प्रोडक्ट्स की आप उनको प्रमोशन बताते हो, इंफॉर्मेशन देते हो और उसी में आपका जो न्यू प्रोडक्ट है वो भी इंक्लूड होता है, लेकिन कस्टमर्स को नहीं पता होता कि ये आपका न्यू प्रोडक्ट है। सो इट गिव कंज्यूमर्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, आप उनको एक फी मनी भी पे करते हो एज ए इंसेंटिव ताकि वो ऑनेस्ट रिव्यूज दे आपके प्रोडक्ट के बारे में। ऑब्वियसली विदाउट इंसेंटिव जो है वो कस्टमर कभी भी आपको ऑनेस्ट रिव्यू नहीं देगा, क्योंकि टाइम इतना किसी के पास नहीं होता, इतना एनर्जी किसी के पास नहीं होती कि वो आपको फीडबैक दें। सो जब आप उनको इंसेंटिव देंगे तो वो आपके लिए टाइम भी निकालेंगे और एनर्जी भी आप वो अपनी वेस्ट करेंगे, गौर से देखेंगे, अपना फोकस अटेंशन पे करेंगे। तो आप उनको रियल और लेबोरेटरी स्टोर एनवायरनमेंट में लेके जाते हो और आप उनको अपनी जो है मनी देते हो, फिर आप उनको लेबोरेटरी में लेके जाते हो, डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, देन आप देखते हो कि वो इन पैसों से कौन सी प्रोडक्ट लेते हैं, आपकी प्रोडक्ट लेते हैं, न्यू प्रोडक्ट लेते हैं, कंपीटिंग ब्रांड्स लेते हैं, क्या लेते हैं। तो फिर आप उनसे फीडबैक लेते हैं कि ये अगर आप उन्होंने न्यू प्रोडक्ट ली है तो क्यों ली है, क्या पसंद आया उनको, और अगर नहीं ली तो क्या व्हाट योर प्रोडक्ट इज लेकिंग, उन्होंने क्यों ये प्रोडक्ट नहीं बाई की, अगर कंपीटिंग ब्रांड्स बाई की हैं तो क्यों कंपीटिंग ब्रांड्स बाई की हैं। So it's a fast and inexpensive, ठीक है, as compared to standard test markets and control test markets, and keep the new product out of competitor view. Competitor को as it's in laboratory आप कर रहे हो, तो competitor को आपकी new product के बारे में information नहीं जाती, लेकिन क्योंकि sample sizes में हमने बहुत थोड़ा लिया होता है और realistic market नहीं होती, laboratory होती है, so real world test नहीं होता, तो इसको इतना एक्यूरेट और रिलायबल इसके रिजल्ट्स को कंसिडर नहीं किया जाता, बट स्टिल इट इज यूज्ड वाइडली एज प्री टेस्ट मार्केट्स। Then after testing, the eighth stage is commercialization. It is introducing new product in the market.
द कंपनी लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट फर्स्ट डिसाइड्स ऑन इंट्रोडक्शन टाइमिंग कि किस टाइम में आपने अपनी न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करना है. इफ द इकोनॉमी इज डाउन, रिसेशन चल रही है, डिफ्लेशन चल रही है, और the product can be further improved, certain modification और improvements मजीद आप product में ला सकते हो. So the introduction और commercialization process जो है इसको आप delay कर दोगे. The company must decide where to launch. मार्केट सेगमेंट आपका क्या होगा? क्या आपने उसको एक सिंगल लोकेशन पे लॉन्च करना है, नेशनल मार्केट में लॉन्च करना है, या फिर आपने उसको इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च करना है? सो इट डिपेंड्स अपॉन योर कैपेसिटी, अपॉन योर आपको जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो आपको बताएगा कि आप एक फुल फ्लेज नेशनल मार्केट में लॉन्च कर सकते हो, आपकी इतनी कैपेसिटी है, आपके इतनी फाइनेंसेस हैं कि आप उसको नेशनल या इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च करो. So that was about the new product development process. So now organizing for new product development can be through sequential product development. Under this approach, one company department works individually to complete its stages of the process. इसमें sequential product development में क्या होता है, आप step by step जितने भी आपके process हैं, step by step आप उनको लेके चलते हो. Like first is idea generation, then idea screening, then concept development and testing, then marketing. So ये जितने भी 8 stages हैं इसको हम लोग step by step लेकर चलते हैं. किसमें? Sequential product development में. So it helps bring control to complex and risky projects as it is step by step process. So complex or risky projects को भी control कर देते हैं, but it is very slow. And in such competitive market, such slow but sure product development can result in product failure, lost sales and profits. Slow इस तरह है कि अगर एक stage जब तक complete नहीं हुआ होगा तो हम next stage में move on नहीं कर सकते. So it's a slow process. Then simultaneous product development process, or we can say that it's a team-based or collaborative product development process. It's an approach to develop new products in which various company departments work closely together. Means step by step नहीं होता, बस closely work together करते हैं as a team, और the steps जो है वो overlap भी कर सकते हैं to save time and increase effectiveness. It's a faster team-oriented approach as compared to this sequential product development process. Now coming towards the next topic means the product life cycle strategies. So first of all, I will tell you what is product life cycle. Product life cycle as human की life cycle होती है, born होता है, then उसका grow करता है, then toddler होता है, then younger होता है, then mature, and then further जो है डिक्लाइन की तरफ चला जाता है. इसी तरह प्रोडक्ट की भी एक लाइफ साइकिल होती है. द पाथ, द कोर्स दैट द प्रोडक्ट सेल्स एंड प्रॉफिट्स टेक्स ओवर इट्स लाइफ टाइम, इट्स कॉल्ड द प्रोडक्ट life cycle. Then the stages of product life cycle are product development, then introduction, then growth, maturity, and then decline. Now we will discuss all of these steps one by one. This is the sales and profits over the product's life from inception to demise, like from start till end. ये आपकी product development है. यहाँ पे x axis पे आपका time है और y axis पे आपके sales और profits हैं. Obviously in product development जो start है उसमें आपके profit जो है बिल्कुल zero होगा और negative में होगा. प्रॉफिट आपका नेगेटिव में होगा, देन इंट्रोडक्शन में भी ऑलमोस्ट नेगेटिव पे होगा, देन ग्रोथ में प्रोडक्ट जो है वो रेस करना स्टार्ट करेंगे, देन मैच्योरिटी और देन डिक्लाइन में फिर प्रॉफिट जो है वो जीरो की तरफ चले जाएंगे. देन सेल्स
आप ले लें। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में सेल्स आपकी ज़ीरो होंगी। ऑब्वियसली कस्टमर्स आर नॉट अवेयर अबाउट योर प्रोडक्ट, कस्टमर्स डोंट हैव इंफॉर्मेशन दैट अ न्यू प्रोडक्ट इज लॉन्च इन द मार्केट। सो इंट्रोडक्शन में आप कस्टमर को अवेयरनेस क्रिएट करेंगे तो आपकी सेल्स जो है वो इंक्रीज होंगी ग्रोथ में। देन मेच्योरिटी में वो बिल्कुल पीक पे में चली जाएंगी। देन डिक्लाइन स्टेज में सेल्स आपकी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगी। सो इट्स अ सेल्स एंड प्रॉफिट ग्राफ जो है आपकी स्टार्ट टिल एंड कैसे होता है। देन ये जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का ग्राफ है, नॉट ऑल प्रोडक्ट्स फॉलो दिस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बिकॉज स्टाइल आपका होता है एक बेसिक एंड डिस्टिंक्टिव मोड ऑफ एक्सप्रेशन है। सो स्टाइल में आपका एक स्टाइल जब मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है देन वो जनरेशन्स टू जनरेशन्स कंटिन्यू करता है, ग्रो कर लेता है, फिर कुछ टाइम के लिए वो डिक्लाइन हो जाता है, देन अगेन वो ग्रो करता है, देन अगेन वो डिक्लाइन करता है। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो एक जो टिपिकल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का ग्राफ है वही शो करे कि मेच्योर हो देन उसके बाद डिक्लाइन हो। नो, मेच्योर होने के बाद डिक्लाइन होता है, देन अगेन मेच्योर होता है, अगेन डिक्लाइन होता है। सो स्टाइल देन आपके जो फैशन है, फैशन करेंटली एक्सेप्टेड और पॉपुलर स्टाइल जो आपका फैशन है वो एकदम से ग्रो करता है, मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है, ग्रो करता है, मेच्योर होता है, देन डिक्लाइन हो जाता है, वो फैशन चला जाता है, देन कोई और फैशन आ जाता है। तो आपकी जो फैड है, टेम्पररी पीरियड ऑफ अनयूजुअल हाई सेल्स ड्रिवन बाय कंज्यूमर इंथुजियाज्म। कोई न्यू प्रोडक्ट मार्केट में आ जाती है, वी आर वेरी इंथुजियास्टिक एंड वी बाय इमीडिएट, हम लोग प्रोडक्ट को बाय कर लेते हैं, ब्रांड बहुत पॉपुलर हो जाता है, हम लोग फौरन से उसको परचेज कर लेते हैं, उसकी जो सेल्स है पीक पे चली जाती हैं, प्रॉफिट्स पीक पे चले जाते हैं, देन हमारा जो इंथुजियाज्म है वो डिक्लाइन हो जाता है, साथ ही प्रोडक्ट भी डिक्लाइन में चली जाती है, उसकी सेल्स रिड्यूस हो जाती हैं, साथ ही उसके प्रॉफिट्स भी रिड्यूस हो जाते हैं। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो एवरी प्रोडक्ट जो है वो ये जो टिपिकल जो ग्राफ है इसी को फॉलो करे। नो, इट इज नॉट नेसेसरी कि हर प्रोडक्ट जो है वो इसी ग्राफ को फॉलो करेगा। सो द फर्स्ट स्टेज, जैसे कि मैंने बताया प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेजेस हैं। सो द फर्स्ट स्टेज इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज। इट बिगिंस व्हेन द कंपनी फाइंड्स एंड डेवलप्स अ न्यू प्रोडक्ट आइडिया। कंपनी को एक न्यू प्रोडक्ट आइडिया आ जाता है। सो इन एट द स्टार्ट सेल्स आपके बिल्कुल जीरो होंगे, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट्स आपकी बहुत हाई होंगी, प्रॉफिट्स आपके नेगेटिव में जा रहे होंगे क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बहुत हाई है, सो हमारे प्रॉफिट्स नेगेटिव होंगे। Then the second stage is our introduction stage. Our sales would be low, uh, क्योंकि अभी customers are not aware of our products, so high cost due to high distribution and promotion expenses. We are creating awareness in consumers about your product. Promotion expenses हमारे बहुत ज़्यादा होंगे, distribution हम cost हमारी बहुत ज़्यादा होगी, profits हमारे still negative में होंगे। इस स्टेज में हम लोग किसको टारगेट करते हैं? हम वी विल टारगेट अवर इनोवेटर्स। सो मैं आपको बता दूं कि हमारे जो अडॉप्टर्स होते हैं उनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक फर्स्ट टाइप जो है वो इनोवेटर्स हैं, दे आर रिस्क टेकर्स। जो भी हमारी न्यू प्रोडक्ट मार्केट में आती है वो लोग उसको परचेज कर लेते हैं, दे आर अवर इनोवेटर्स। देन जो इनोवेटर्स के बाद हमारे अडॉप्टर्स हैं उनको हम लोग कहते हैं अर्ली अडॉप्टर्स। जो इनोवेटर्स को देख के अडॉप्ट कर लेते हैं उसको हम कहते हैं अर्ली अडॉप्टर्स। देन अर्ली अडॉप्टर्स के बाद हमारे आ जाते हैं अर्ली मेजॉरिटी। देन अर्ली मेजॉरिटी के बाद मिडल मेजॉरिटी, देन लेट मेजॉरिटी, एंड फाइनली हमारे जो लेगर्ड्स आ जाते हैं जो चेंजेस को अडॉप्ट नहीं करते। लाइक लेगर्ड्स में हमारे पास ये जो एज्ड पीपल हैं, जब हमारे सेल फोन्स मार्केट में इंट्रोड्यूस हो रहे थे, सो दे वर resisting the change, they were not fond of cell phones, but एज टाइम के साथ साथ सेल फोन जो हमारी एक नेसेसिटी बन गया, सो फाइनली मजबूरन उनको, जो हमारे लेगर्ड्स हैं उनको सेल फोन को अडॉप्ट करना पड़ा। सो इंट्रोडक्शन स्टेज में हम लोग अपने इनोवेटर्स को टारगेट करेंगे, जो रिस्क टेकर्स हैं, जो न्यू प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं, रिस्क लेते हैं, इनोवेटिव चीजें इनको पसंद होती हैं, और लिटिल कंपटीशन होगा एज अवर इट्स अवर न्यू प्रोडक्ट, सो कॉम्पिटिटर्स वुड बी लेस।
So what would be our marketing strategy for this introduction stage? Product offers a basic product होगी, प्राइस जो है हम लोग कॉस्ट प्लस प्राइस लेंगे कि इतनी हमारी कॉस्ट है, सो उसके ऊपर हम लोग इतना प्रॉफिट मार्जिन डाल के हम इतनी प्राइस हम लोग ले लेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन जो है सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा, क्योंकि ज़्यादा लोगों को हमारी प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। एडवर्टाइजिंग हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करेंगे अर्ली अडॉप्टर्स को और डीलर्स को और रीसेलर्स को। सो द सेल्स प्रमोशन जो है हमारी हैवी एक्सपेंडिचर टू क्रिएट ट्रायल सेल्स प्रमोशन, हम लोग एक्सटेंसिव सेल्स प्रमोशन करेंगे। Then the third stage is growth stage. Product sales start climbing quickly. Growth stage में जो है sales increase होनी start हो जाएंगी। Our target will be the early adopters, innovators ने तो adopt कर लिया है, then अब will continue to buy and late buyers will start following them with getting favorable word of mouth सुन के जो हमारे अर्ली अडॉप्टर्स हैं वो भी लेंगे, फिर जो लेट बायर्स हैं वो भी परचेज करना स्टार्ट कर देंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू फीचर्स टू एक्सपैंड द मार्केट, कंपटीशन भी इंक्रीज हो जाएगा, सो डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। आप एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, हाई प्रमोशन स्पेंडिंग टू एजुकेट द मार्केट, देन प्रॉफिट इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाएंगे। एज हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो हमारी यूनिट कॉस्ट फॉल हो जाएगी। सो कंपटीशन ज़्यादा है तो आपने अपनी क्वालिटी को इंक्रीज करना है। हमने कंपटीशन ज़्यादा है तो हम लोग न्यू मार्केट सेगमेंट्स में इंटर हो जाएंगे, अपनी प्राइसेस को लो करेंगे टू अट्रैक्ट बायर्स, स्पेंड्स ऑन प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट, प्रमोशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशंस टू कैप्चर dominant position in the market as the competition in the market is increasing. So what would be our strategies in the growth stage? Offer प्रोडक्ट एक्सटेंशंस, हम आफ्टर सेल सर्विसेज देंगे, वारंटी गारंटी देंगे, ताकि हम लोग कस्टम अपने कॉम्पिटिटर्स से कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकें। प्राइसिंग हम पेनेट्रेशन प्राइसिंग कर रखेंगे, मींस लो प्राइसिंग रखेंगे टू पेनेट्रेट डीप इनटू द मार्केट। सो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स जो होंगे आपको वो इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होंगे, एडवर्टाइजिंग कंपेन्स, अवेयरनेस एंड इंटरेस्ट इन द मास मार्केट आप लोग एडवर्टाइजिंग कंपेन्स चलाओगे। देन सेल्स प्रमोशन जो है रिड्यूस एक्सपेंडिचर्स टू टेक एडवांटेज ऑफ consumer and demand. So then coming towards our maturity stage में क्या होता है, sales growth slows down हो जाती है। This stage lasts longer than the previous stages. Competition बहुत ज़्यादा हो जाता है। Competitors starts to mark down prices. Competitors जो है वो अपनी prices को reduce करना शुरू हो जाते हैं, अपनी advertising को increase करते हैं, sales promotion को increase करते हैं, research and development को increase करते हैं to find better versions of the product. So this would lead in drop in the profit, cost increase हो जाती है again, तो प्रॉफिट डिक्रीज हो जाता है। सो इस स्टेज में जो आपकी वीकर कॉम्पिटिटर्स हैं वो ड्रॉप डाउन हो जाते हैं, मींस वो कोप अप नहीं कर सकते, जो चेंजेस जो कंपटीशन चल रहा है सो वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं। कंपनी स्टार्ट मॉडिफाई, कंपनीज जो है मॉडिफिकेशन स्टार्ट कर लेते हैं। मॉडिफिकेशन इन द मार्केट, मॉडिफिकेशन इन द प्रोडक्ट, मॉडिफिकेशन इन द मार्केटिंग मिक्स। सो मॉडिफिकेशन इन द मार्केट बाय लुकिंग फॉर न्यू यूजर्स एंड मार्केट सेगमेंट्स, न्यू यूजर्स, न्यू चेंजेस मार्केट में लाते हैं ताकि हम न्यू यूजर्स को अट्रैक्ट कर सकें और न्यू मार्केट सेगमेंट्स में एंटर हो जाते हैं। देन मॉडिफाइंग द प्रोडक्ट बाय चेंजिंग फीचर्स, क्वालिटी, style to attract new customers. Then they modify their marketing mix, means their product price, placing, promotion, by cutting the prices, by better advertising campaign, and by better sales promotion. So the marketing strategy in this maturity stage would be diversify brands and models। आप diversification अपने brands and models में लाते हैं, changes लाते हैं, क्योंकि competition बहुत ज़्यादा है। आप अपनी pricing जो है competitor की प्राइस को देख के आप अपनी प्राइस को एडजस्ट करते हैं, अपनी प्राइस को कम करने की कोशिश करते हैं ताकि कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकें कंपैरेटर से। बिल्ड मोर इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन कंपेन आप चलाते हैं, एडवर्टाइजिंग, स्ट्रेस ब्रांड डिफरेंसेस एंड बेनिफिट्स।
आपकी एडवर्टाइजिंग कैंपेन जो है वो किस पे फोकस करती है? ब्रांड डिफरेंसेस पे। आप अपने कस्टमर्स को बताते हैं कि आपकी प्रोडक्ट में और कंपैटिटर की ब्रांड में डिफरेंसेस क्या हैं और आप उनको क्या बेनिफिट्स ऑफर कर सकते हैं जो कि कंपैटिटर की ब्रांड में वो डिफरेंसेस, वो बेनिफिट्स नहीं है। सो आप उनको ब्रांड डिफरेंसेस के बारे में अवेयरनेस क्रिएट। So what would be the strategies in this maturity stage? You would diversify brand and models. अच्छा जी, sales promotion increase to encourage brand switching. Then decline stage. In this stage, products sales decline due to technological advancement, changes in consumers' taste, and increase competition. So in the decline stage, आपकी जो market है उसमें इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा आ जाती है, कस्टमर की टेस्ट जो है वो चेंज हो जाते हैं, कंपटीशन बहुत इंक्रीज हो जाता है, सो आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी सेल्स डिक्लाइन हो जाती है। कंपनी में डिसाइड टू हार्वेस्ट द प्रोडक्ट means reducing various costs like maintenance, research and development, advertising, sales force। कंपनी जो है अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना शुरू कर देती है। देन मैनेजर्स में डिसाइड टू ड्रॉप ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट लाइन। यहाँ तो वो अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर देगी ताकि मार्केट में इंटर रह सके, या फिर जो मैनेजर्स हैं वो अपनी प्रोडक्ट को ड्रॉप ऑफ कर देंगे, मींस प्रोडक्ट को सेल आउट कर देंगे। प्रोडक्ट्स प्रॉफिट्स जो है वो डिक्लाइन होंगे, कंपटीशन भी डिक्लाइन हो जाएगा, कंपेटिटर्स जो है आहिस्ता आहिस्ता मार्केट से निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। और इस स्टेज में आपकी जो लैगर्ड्स हैं, जो चेंज को रेजिस्ट करते हैं, आपका जो टारगेट होगा वो लैगर्ड्स होंगे। Then what would be the strategy in decline stage? Phase out weak items। आप जो आपकी वीक आइटम्स हैं उसको आप लोग ड्रॉप आउट कर देंगे, प्राइसेस को कट कर देंगे, कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे टू एंटर टू रिमेन इन द मार्केट। देन डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसी होगी? यूज सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि सेल्स बहुत डिक्लाइन हुई तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो भी आप लोग बहुत सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग करेंगे। जो अनप्रॉफिटेबल आउटलेट्स हैं उसको ड्रॉप आउट कर देंगे। देन जो आपकी एडवर्टाइजिंग है, रिड्यूस टू लेवल नीडेड टू रिटेन हार्ड कोर लॉयलिस्ट्स। जो आपके लॉयल कस्टमर्स हैं उनको आप टारगेट करेंगे, या फिर आप जो अपने लैगर्ड्स हैं उनको आप अपने टारगेट करेंगे। देन जो आपका सेल्स प्रमोशन है, रिड्यूस टू मिनिमल लेवल्स। ऑब्वियसली जब सेल्स नहीं है तो आपकी जो सेल्स प्रमोशन है वो भी मिनिमल लेवल पे रिड्यूस हो जाएगा। So this is the summary of product life cycle characteristics, objectives, and strategies, as I have discussed it already, that in introduction आपकी sales low होंगे, आपके cost जो है वो high होंगे, आपके profits जो है वो negative होंगे, आपके customers कौन होंगे? आप अपने innovators को target करेंगे, competitors आपके few होंगे। So strategies आप कौन कौन सी adopt करेंगे? बेसिक प्रोडक्ट आप ऑफर करेंगे, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग आप लोग लेंगे कि इतनी हमारी कॉस्ट है तो इतने परसेंट हम अगर उसमें प्रॉफिट ऐड कर लें तो हमारी प्राइस इतनी होगी। डिस्ट्रीब्यूशन आपकी सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन होगी। एडवर्टाइजिंग आप अपने अर्ली अडॉप्टर्स को, जो आपके इनोवेटर्स हैं उनको आप एडवर्टाइज करेंगे। देन सेल्स प्रमोशन, हैवी सेल्स प्रमोशन आप ऑफर करेंगे। देन ग्रोथ स्टेज में आपकी सेल्स जो है वो इंक्रीज होने लगेंगी, एवरेज कॉस्ट पर कस्टमर जो है वो कम होने लगेगा, क्योंकि आपकी सेल्स इंक्रीज होंगी तो यूनिट कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे, आपके जो अर्ली अडॉप्टर्स हैं आप उनको टारगेट करोगे, और कॉम्पेटिटर्स जो हैं वो आपके इंक्रीज हो जाएंगे। सो द स्ट्रैटेजीज जो आप ऑफर करेंगे, एक्सटेंशंस, सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विसेज और वारंटी गारंटी आप ऑफर करेंगे। प्राइस पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी आप अडॉप्ट करेंगे, मींस लेस प्राइस टू पेनिट्रेट इनटू द मार्केट। देन डिस्ट्रीब्यूशन है, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आप करेंगे। देन एडवर्टाइजिंग, बिल्ड अवेयरनेस एंड इंटरेस्ट इन द मास मार्केटिंग। देन आपकी जो सेल्स प्रमोशन होंगी, हैवी कंज्यूमर डिमांड है
आप सेल्स प्रमोशन को अप्लाई करेंगे, देन जो आपकी मैच्योरिटी स्टेज है, आपकी सेल्स बिल्कुल पीक पर पहुंच जाएंगी, पर यूनिट कॉस्ट आपकी मजीद रिड्यूस हो जाएगी, प्रॉफिट्स इंक्रीज हो जाएंगे। ऑब्वियसली पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी तो प्रॉफिट्स इंक्रीज हो जाएंगे। देन यहाँ पे आप मिडिल मेजॉरिटी को आप अपना टारगेट बनाते हैं। कॉम्पिटिटर्स आपके कौन से हैं? स्टेबल नंबर बिगिनिंग टू डिक्लाइन, जो आपके कंपेटिटर्स हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन होने कम होने शुरू हो जाएंगे। प्रोडक्ट आप डाइवर्सिफिकेशन, ब्रांड्स एंड न्यू मॉडल्स इंट्रोड्यूस करवाएंगे इस स्टेज में कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। प्राइसिंग आप अपने कॉम्पिटिटर को देख के प्राइस को क्रिएट करेंगे कि उससे कम प्राइस हो ताकि कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके। इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा। सिमिलरली एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन भी उसके अकॉर्डिंगली होगी। देन डिक्लाइन स्टेज में सेल्स डिक्लाइन हो जाएंगी, कॉस्ट पर कस्टमर रिड्यूस हो जाएगा, प्रॉफिट्स भी रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आप अपने लैगर्ड्स को टारगेट करेंगे। कॉम्पिटिटर्स जो हैं, जो वीक कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो ड्रॉप आउट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यह इसी इसी तरह से आप अपनी स्टेज के अकॉर्डिंगली आप उसको अडॉप्ट करेंगे। वीक आइटम्स जो हैं जिनकी सेल्स नहीं हो रही उसको आप ड्रॉप आउट कर देंगे, प्राइसेस को आप अपने कट करेंगे, सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को आप लेंगे, और जो अनप्रॉफिटेबल आउटलेट्स हैं उसको आप रिमूव कर लेंगे, ड्रॉप आउट कर देंगे, उसको आप अपनी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। देन एडवर्टाइजिंग कंपेन जो है वो आपके सिर्फ लॉयल जो आपके कस्टमर्स हैं उनके लिए आप एडवर्टाइजिंग कंपेन लॉन्च करेंगे। And clients needs. Was all about our today's topic, that was about